Hello students, today we will learn about the features of saline and alkali soils, and in the last lecture we discussed about the difference between saline and alkali soil or sodic soil. And in saline soil we discussed that there is a problem of excess soluble salt, and these salts are in high concentration, that's why affect the plant growth and productivity. While in case of alkali or sodic soil, these alkali soils are also known as sodic soil, have a problem of excess exchangeable sodium. So the problem is different in saline soil and alkali soil. So what are the soil characteristics or feature in case of saline soil and alkali or sodic soil? Today we will discuss. So first of all, saline soil. So what is the problem with the saline soil? And in saline soil, what is the problem? Problem of excess soluble salts. And these salts are in very high concentration, that affect the plant growth and productivity. And salts are essential nutrient, actually essential nutrient, but their concentration is very high. And in case of saline soil, the salts are mainly chloride and sulfate, particularly of calcium, magnesium and potassium. Okay, and because of these salt, the soil water become very saline, and because of this high salinity, osmotic potential of soil water become very less or negative side. So there is a problem, and that's why there is poor absorption of water. अभी इसको हम डिस्कस करेंगे क्यों poor absorption हो जाता है वाटर का. So first we will discuss about the soil characteristics. Okay, so mainly salts are chloride and sulfates of calcium, magnesium, potassium, and small amount of sodium, and some anions, nitrate are also present, but their concentration is very less. Particularly major salts are chloride and sulfate of calcium and magnesium, and these salts are white in color. Chloride and sulfate salts white in color. So these salts deposited on soil surface. So how they deposit in soil surface? Suppose this is soil surface and this is lower soil surface. Okay, because of evaporation, salt come on the upper surface by capillary action of water. So there is lower layer of soil and water is there, and because of capillary action, water move upward side, and here water get evaporated but salt accumulated on soil surface. So this surface is filled with the salt, and salts are in white color. That's why the surface appear white in color. So saline soil color is white. That's why these saline soils are also known as white alkali soil. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि white alkali क्यों कहते हैं. So this is the reason, because salt color are white and this salt deposit on soil surface. So आपको समझ में आया होगा कि soil surface पे क्यों डिपॉजिट हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे salt नहीं है, यहाँ पे भी salt है, पूरी soil में salt है, and salt concentration is generally more than 0.2%. 0.2%. Okay, so ये एक पहला फीचर ये हुआ कि salt क्या होंगे, accumulate कर जाएंगे. And since there is a calcium in saline soil, यहाँ calcium रहता है, and calcium is beneficial or helpful for soil aggregation. So soil aggregation is good, soil physical condition is good. तो अगर हम इसका aggregation देखें, flocculation देखें, flocculation, aggregation is very good. That's why infiltration rate or percolation is good. There is no problem with the infiltration and percolation. तो जब पानी जाएगा, इन्फिल्ट्रेट भी करेगा, पर्कुलेट करेगा, तो उसमें प्रॉपर एरेशन भी मेंटेन रहेगा, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, एंड पोर स्पेस इज देयर. सो दैट्स वाई रूट ग्रोथ इज नॉट सो हैम्पर्ड. तो यहाँ फिजिकल कंडीशन क्या रहती है सॉइल की, सही रहती है. ओके, इट इज गुड, फिजिकल कंडीशन इज गुड. बट इफ वी सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सो देयर आर एक्सेस salts. मैं पहले बता चुका हूँ, these salts are essential nutrient. Okay, but because of their high concentration, they affect the other properties. Okay, so what is the chemical effect? Because these salts are in high concentration, that's why they show toxic effect. Okay, and because of this salt, okay, EC is very high. EC is more than 4 decisiemens per meter, and pH is less than 8.5. pH is less than 8.5, but it is above the neutral pH, and most of the nutrients are available at neutral pH, so pH 7, and because of this pH 8.5, it is quite high pH. Okay, some of the nutrients are not available, like nitrogen, sulfur, micronutrient, particularly iron, zinc, manganese. These nutrients
अवेलेबिलिटी गेट रिड्यूस। तो ये एक केमिकल इफेक्ट आता है कि इसकी EC बढ़ गई, pH भी न्यूट्रल से ऊपर गई, नो डाउट इट इज लेस देन 8.5 बट इट इज मोर देन neutral 7, okay, and some of the nutrients are not available and some are in high concentration, particularly chloride toxicity is there, okay, sulfate toxicity is also there, okay. So this is the impact. Then biological properties related with the microbial activity. देखिए यहाँ क्या है, pH ज़्यादा हो रही है, salinity हो रही है, that's why microbial activity is poor, and nitrogen mineralization, sulfur mineralization, organic matter decomposition, this is adversely affected. So this is the problem with the saline soil कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि saline soil की ये physical properties क्यों अफेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रही हैं, यहाँ मेनली कौन सी अफेक्ट हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। सो दिस वाज द केस ऑफ saline soil. नाउ द प्रॉब्लम विद द alkali soil. Alkali soils are very dangerous soil, और हम कहें तो एज कम्पेयर टू saline soil these are very harmful or very problematic soil as compared to saline soil. And in case of alkali soil, what is the problem? In case of alkali soil there is dominance of exchangeable sodium. अब यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ exchangeable sodium is very high. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि exchangeable sodium ज़्यादा क्यों हो जा रहा है? And there are several reasons, and there may be that problem may be that the soil is already rich in sodium ion, okay, और लीचिंग ऑफ कैल्शियम आयंस, तो वहाँ सोडियम डोमिनेट कर जाएगा. सो इन एल्कली सॉइल और सोडिक सॉइल, और वी कैन सोडिक सॉइल, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक सॉइल, एंड दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ सोडियम, एक्सचेंजेबल सोडियम आयन एंड सोडियम कार्बोनेट salt. And in alkali soil actually carbonate and bicarbonates of sodium are present. Carbonate and bicarbonate are present in case of sodic soil, and because of this carbonate and bicarbonate of sodium, यहाँ देखिए कार्बोनेट बाइकार्बोनेट किसके हैं, सोडियम के हैं. कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, बट देयर अमाउंट इज वेरी लेस. कैल्शियम मैग्नीशियम अमाउंट इज वेरी लेस. मेजर अमाउंट इज कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पर्टिकुलरली सोडियम कार्बोनेट. और मैंने पहले लेक्चर में बताया था सोडियम कार्बोनेट कैसा साल्ट है, बेसिक साल्ट है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सोडियम कार्बोनेट pH इज वेरी हाई. pH इज वेरी हाई एंड इट इज मोर देन 8.5. अब यहाँ देखिए क्या होगा, एक तो pH का इम्पैक्ट आएगा. बिकॉज ऑफ हाई pH मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल. तो जनरली यहाँ का एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है मोलिबिडनम. मोलिबिडनम क्या होता है, इट इज अवेलेबल एट हाई pH. अदरवाइज जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं लो pH पे अवेलेबल होते हैं. So except molybdenum, all macronutrient availability is reduced. Then nitrogen availability reduced, phosphorus availability reduced, sulfur availability reduced. Okay, except molybdenum. molybdenum क्या होता है, हाई pH पे अवेलेबल होता है. तो यहाँ molybdenum की क्या होगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी. इतना अवेलेबल हो सकता है हाई pH पे. देन सोडियम टॉक्सिसिटी यहाँ पे होगी. अब यहाँ सोडियम की जब टॉक्सिसिटी हो रही है, एक्सचेंजेबल सोडियम ज़्यादा हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द एक्सचेंजेबल सोडियम, दैट इज चार्ज डेंसिटी ऑफ सोडियम इज वेरी लो. यहां आपको समझना पड़ेगा चार्ज डेंसिटी. व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी ऑफ सोडियम इज वेरी लो. इसका मतलब यह है कि देखिए सोडियम का कितना आयन है, +1 है, +1. ओके, एंड इसका जो हम हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई देखें सोडियम की, एक्चुअली आयंस आर प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, वो वाटर के साथ कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं. एंड हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ी आयनिक रेडियाई इसकी होती है. तो जो एक जो चार्ज है +1 चार्ज इज कवरिंग ए लार्ज एरिया. मान लीजिए ये कवरिंग कर रहा है इतने बड़े एरिया की, और एक कोई दूसरा जो मोनो वैलेंट कैटायन है वो कवर कर रहा है इतना एरिया, और दोनों में ही +1 है, +1 चार्ज. So in this case, जो सोडियम in this case of sodium +1 charge is covering a large volume. तो जो इसका इम्पैक्ट होगा सेटिस्फाई करने में, नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने में इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, बिकम वेरी लेस, क्योंकि +1 बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है, तो वहाँ जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको कम को सेटिस्फाई कर पाएगा. बट इन दिस केस हेयर +1 कोई हम कैटायन मान लें, माने पोटेशियम ले लें या कोई दूसरा हम ले लें, एंड वॉल्यूम इज लो एज कंपेयर टू सोडियम. तो क्या करेगा, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम एरिया में है, कम वॉल्यूम में है, वहां के नेगेटिव चार्ज को ज्यादा सेटिस्फाई करेगा. एंड क्ले पार्टिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज. सो इफ सोडियम इज प्रेजेंट ऑन क्ले पार्टिकल, ओके,
ये हमने सॉइल मान लिया कि ये सॉइल के दो हमने पार्ट मान लिए, नेगेटिव चार्जेस एंड अनदर नेगेटिव चार्जेस, एंड दिस सॉइल इज डोमिनेटेड बाय सोडियम आयन. ओके ओके, सो सपोज 3 सोडियम आयन आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई 3 नेगेटिव चार्ज, और हमने कोई दूसरा ही मान लिया 3A+ हमने मान लिया, एंड इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसकी चार्ज डेंसिटी कम है सोडियम की, क्योंकि बिकॉज आयनिक रेडियस ज़्यादा है इसकी. तो यहाँ क्या होगा, अगर हम मैथमेटिकली देखें 3 पॉजिटिव आर सेटिस्फाइंग 3 नेगेटिव, हेयर 3 पॉजिटिव आर सेटिस्फाइंग 3 नेगेटिव चार्ज, बट एक्चुअली इफ वी सी द वॉल्यूम, सो 3 पॉजिटिव चार्ज कवरिंग लार्ज वॉल्यूम, और यहाँ जो है इसका जो नेगेटिव चार्ज का वॉल्यूम क्या है, कम है. ओके तो उसमें क्या होगा कि फुली सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. चार्ज बहुत दूर तक फैल गया तो हम कह सकते हैं, इसको ऐसे समझिए, चार्ज जगह बहुत दूर तक फैल गया तो उसकी लेयर क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी. मान लीजिए इसको ऐसा, बहुत चीज़ दूर तक हमने फैला दिया तो लेयर हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और फिर इन नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी. और यहाँ क्या है, इसमें चार्ज ज़्यादा दूर तक नहीं फैला है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, कमी एरिया में है, तो वहाँ 3 नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा. तो इन दिस केस ऑफ सोडियम सम नेगेटिव चार्ज रिमेन अनसेटिस्फाइड, कुछ नेगेटिव चार्ज सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा. तो इस केस में क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज शो करेगा क्ले पार्टिकल, एंड हेयर चार्ज विल बी 0 इन दिस केस. अब क्या होगा, जब सोडियम डोमिनेटेड सॉइल होगी तो जैसे जैसे सोडियम बढ़ता जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन सॉइल पार्टिकल्स. एंड इन द अदर लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम और लिथियम, और दूसरा कोई देखें उसमें क्या होगा, सेटिस्फाई चार्ज होता रहेगा, 0 होता रहेगा, तो सॉइल के पार्टिकल्स पे चार्ज न्यूट्रल होता जाएगा. और यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे एज द नंबर ऑफ सोडियम इंक्रीजेज, नेगेटिव चार्ज अनसेटिस्फाइड बिकम मोर. तो इन टोटल हम सॉइल में देखें, अगर इफ सोडियम डोमिनेटेड सॉइल, तो नेगेटिव चार्जेस क्या है, ज़्यादा है. अब क्या होगा, जब सॉइल पे पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके, इन केस ऑफ सोडियम डोमिनेटेड सॉइल, देन दिस नेगेटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर. क्योंकि अब क्या है कि सॉइल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, सोडियम आयन इज देयर, बट इट इज नॉट सेटिस्फाइंग होल नेगेटिव चार्जेस. तो वहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस नेट अमाउंट बढ़ जाएगी, और फिर नेगेटिव चार्जेस पूरे पार्टिकल पे होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो इन दिस सिचुएशन, बट इन दिस सिचुएशन लाइक कैल्शियम, अगर कैल्शियम होगा तो यहाँ क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा, वहाँ कोई रिपल्शन नहीं होगा. तो अब होगा क्या सोडियम डोमिनेटेड सॉइल में, द सॉइल पार्टिकल्स, अगर ये चार्ज न्यूट्रल रहता, देन सॉइल रिमेन इन फ्लॉकुलेटेड कंडीशन और एग्रीगेटेड कंडीशन और फ्लॉकुलेटेड कंडीशन. ये देखिए, ये एग्रीगेटेड कंडीशन, फ्लॉकुलेटेड कंडीशन है. तो इसमें देखिए पोर स्पेस बने हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन प्रॉपर होगा और पर्कुलेशन प्रॉपर होगा, रूट ग्रोथ प्रॉपर होगी. बट इन केस ऑफ सोडियम डोमिनेटेड सॉइल, दिस will carry negative charge, this particle will carry negative charge, so there will be dispersion, और dispersion में क्या हो जाएगा, they deflocculated, deflocculation is there, dispersion is there in case of sodium dominated soil. So this is the problem with the alkali soil, there is dispersion of clay particles. तो अब क्या होगा, जब clay particles सॉइल पार्टिकल डिस्पर्स कर जाएंगे तो इन्फिल्ट्रेशन इज पुअर, सॉइल में जाएगा नहीं, पर्कुलेशन इज वेरी पुअर. तो जो इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो पानी क्या रहेगा, वाटर विल रिमेन ऑन सॉइल सरफेस. ओके, देन पर्कुलेशन इज वेरी पुअर. अब यहाँ पोर स्पेस भी नहीं है, डिस्पर्स हो गए सॉइल, देन रूट ग्रोथ इज वेरी पुअर. और यहाँ देखिए फिजिकल कंडीशन इज वेरी पुअर, फिजिकल कंडीशन इज वेरी पुअर, वाइल इन केस ऑफ सलाइन सॉइल फिजिकल कंडीशन इज गुड. तो दिस इज द प्रॉब्लम विद दी दिस एल्कली और सोडिक सॉइल. अब जब ये फिजिकल कंडीशन पुअर हो रही है तो उसमें कोई भी, अब सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाएगी, कॉम्पैक्ट लेयर बनेगी, रूट ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, ये एक रीज़न आएगा. उसका क्या होगा, सोडियम डोमिनेटेड सॉइल में देयर इज सोडियम ऑन क्ले कॉम्प्लेक्स एंड देन इट मेक NOH बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट, साल्ट ज़्यादा रहेंगे, हाई pH रहेगी, एंड बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन, बिकॉज ऑफ NOH, ये क्या करेगा, ह्यूमस के साथ ऑर्गेनिक मैटर को डिसॉल्व करेगा, और ऑर्गेनिक मैटर का भी क्या होगा, डिस्पर्जन होगा. यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका भी क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, एंड दिस ऑर्गेनिक मैटर इज लीज डाउन एंड देन इट इज एक्यूमुलेटेड ऑन लोअर सरफेस. अब जो ऑर्गेनिक मैटर जो डिपोजिट होंगे, और तो कैसी लेयर बनेगी, ब्लैक लेयर बनेगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर.
So that's why these soils are also known as black alkali soil. Black alkali. So this is the physical condition. Now the chemical properties पे क्या इफेक्ट आएगा? chemical properties देखिए, सोडियम डोमिनेंट, तो सोडियम टॉक्सिसिटी इज देयर, देन कार्बोनेट टॉक्सिसिटी इज देयर, एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इज वेरी पुअर. और क्या होगा कि माइक्रोबियल एक्टिविटीज वेरी पुअर. तो यहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एडवर्सली अफेक्टेड. फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर एडवर्सली अफेक्टेड. तो ये एक प्रॉब्लम सोडिक सॉइल में आती है, एल्कली सॉइल में. तो दैट्स वाई सोडिक सॉइल्स आर वेरी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम. तो ये जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है एक्सचेंजेबल सोडियम में से हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स लो चार्ज डेंसिटी. तो जैसी लो चार्ज डेंसिटी हुई, रिपल्शन हुआ. देखिए रिपल्शन हुआ, रिपल्शन से क्या हुआ? डिस्पर्जन हुआ. डिस्पर्जन से पुअर इन्फिल्ट्रेशन, पुअर पर्कुलेशन, पुअर रूट ग्रोथ. ओके, एंड सोडियम कार्बोनेट इज देयर, कार्बोनेट साल्ट्स आर देयर, सोडियम कार्बोनेट बिकॉज ऑफ हाई pH. देन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इज रिड्यूस्ड, माइक्रोबियल एक्टिविटीज रिड्यूस्ड. तो ये मैंने आपको बताया, ये फीचर्स जनरली क्या रहेंगे सॉइल के रहेंगे. तो यहाँ जो है ब्लैक हमें लेयर नजर आएगी किसमें? एल्कली सॉइल में और सोडिक सॉइल में. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लैक एल्कली. और वाइट एल्कली किसके केस में है? जिसके सलाइन सॉइल में, वहाँ क्या है? सॉल्युबल साल्ट्स हैं. तो अगर हम इसका मैनेजमेंट देखें तो इसको मैनेज करना बड़ा टिपिकल है, क्योंकि हमें एक्सचेंजेबल सोडियम पहले हटाना पड़ेगा मैनेजमेंट में, तो इसको लीचिंग करनी पड़ेगी. बट इन केस ऑफ सलाइन सॉइल ओनली लीचिंग. और लेकिन लीचिंग में हम क्या करते हैं? कंप्लीट लीचिंग नहीं करते हैं. अगर कंप्लीट लीचिंग करेंगे तो सारे के सारे साल्ट्स क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे. और साल्ट ही क्या? एसेंशियल न्यूट्रिएंट है. जब एसेंशियल न्यूट्रिएंट रहेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी पुअर हो जाएगी. तो हम कंट्रोल लीचिंग करते हैं. इसको मैं मैनेजमेंट पार्ट आपको बाद में बताऊंगा. आज मैंने आपको बताया फीचर्स ऑफ सलाइन soil and alkali soil. Why saline soils are called white alkali and alkali soils or sodic soils are called black alkali. तो ये आपको मैंने बताया. इसको मैं आपको क्लासिफिकेशन पहले बता चुका हूँ. इसमें सलाइन सॉइल को एक दूसरा टर्म भी है सलाइन सॉइल एंड एल्कली सॉइल के लिए. सलाइन सॉइल्स आर नोन एज सोलन चॉक, सोलन चॉक, and this is saline soil. And alkali or sodic soils are solan nats, solan ats, TZ. These are alkali soil. तो ये अब आपको फीचर्स समझ में आ गए होंगे. आपको पता चल गया होगा कि इतनी प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्यों है, बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन. तो इन्फिल्ट्रेशन से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है. और आपको फिर मैं बताऊंगा कि कैसे वाटर पोटेंशियल से अफेक्ट होता है, कैसे प्लांट ग्रोथ अफेक्ट होती है. इसको मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा. तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो. थैंक यू वेरी मच.